Good morning, students. So, as we are discussing chapter number 4 of class 10th, that is quadratic equations. In this chapter, we have completed up to exercise 4.2. In the previous video, we solved the question by using factorization method. Okay, but in the starting of the chapter, as I told you, there are three ways by which we can solve quadratic equations, or we can say there are three methods by which we can solve quadratic equation, and we have completed one method, that is factorization method. Now we will continue chapter with second method, that is completing the square method. Okay, so this is second method by which we can find out roots, zeros, or we can say solution of a quadratic equation. So solution of a quadratic equation by completing the square method. So now I will take one example from the exercise 4.3 to discuss this method. So come to the exercise 4.3. So first question is, find the roots of the following quadratic equations if they exist by the method of completing the square. Okay, so we have to calculate roots or zeros of the following quadratic equations by completing the square method. Okay, so we will use completing the square method, but there is one thing is also in the question, that is if they exist. What is the meaning of if they exist? if they exist का यहाँ पे मतलब क्या है वो यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं. ठीक है, सो जब चैप्टर स्टार्ट किया था एट दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स. okay, and in the polynomial chapter I taught you that the zeros of any polynomial depends on the degree of the polynomial. If a polynomial has degree 3, so it means this polynomial has at most 3 real roots. Okay, if degree of the polynomial is 4, it means this polynomial has at most 4 real roots. Okay, but in quadratic equation degree is 2, it means every quadratic equation has at most 2 real roots. Okay, at most कितने रियल रूट्स होंगे? 2 होंगे. बट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके 2 ही रूट्स होते हैं. हमेशा जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे? 2 ही होंगे. आइदर रियल रूट्स, आइदर इमेजिनरी रूट्स. या तो रियल रूट्स होंगे या फिर इमेजिनरी रूट्स होंगे. ओके, सो वी कैन ओनली कैलकुलेट रियल रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम सिर्फ कैसे रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के? रियल रूट्स. हम उसके इमेजिनरी रूट्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे यही लिखा है कि अगर उसके जो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ओके, इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर उसके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, कौन से वाले? रियल रूट्स, तभी हमको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके रूट्स हमको बताने, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमको बताने हैं. अगर वो एग्जिस्ट करते हैं मीन्स रियल हैं. तो नाउ हाउ विल वी चेक that this quadratic equation has real roots or imaginary roots? So now come to the question to understand this thing in brief. क्वेश्चन करते हैं, उससे हम पता लगाएंगे कि कब रियल होंगे और कब इमेजिनरी होंगे, हमको कैसे पता चलेगा. ओके, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. सो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ओके, now as we can see the coefficient of x square is 2. तो जो x स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 2 है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो x स्क्वायर कोफिशिएंट है वो हमको हमेशा 1 करना पड़ता है. ओके, इसके 2 मेथड्स हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर के. आई एम टेलिंग यू 1 मेथड, ओके, बाय विच यू कैन सॉल्व
क्वेश्चन। ओके, तो ये मेथड जो है क्वाइट ईजी है, जो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सो हमको इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो एक्स उसका कोफिशिएंट है उसको हम 1 कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2। सो नाउ डिवाइड ऑल इक्वेशन बाई 2। ऑन डिवाइडिंग both sides of the equation by 2 we obtain। ओके, डिवाइड करने पे क्या मिलता है बोथ साइड में। सो हेयर 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, हर एक में 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे भी मैं 0/2 कर देता हूँ तो वो 0 ही रहेगा। ओके, सो 2 इज कैंसल्ड बाई 2 1 टाइम। ओके, तो यहाँ क्या बचा, ओनली एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या हुआ, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो भी कितना हो गया 1 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम इसमें क्या करेंगे, नाउ व्हाट द मीनिंग ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका स्क्वायर बनाना है, मींस होल स्क्वायर बनाना है। सो जब होल स्क्वायर हम बनाएंगे तो या तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं, ओके, या a माइनस बी का। ओके, तो हमको इसको कंप्लीट करना है किसमें, a प्लस बी के होल स्क्वायर में या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में। सो नाउ वन क्वेश्चन हैज अराइजेज व्हेन वी नीड टू मेक a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन bx। किस पे डिपेंड करता है ये, bx पे डिपेंड करता है। सो हेयर bx इज 7/2x और दिस bx हैज नेगेटिव साइन। bx का कैसा साइन है, नेगेटिव। हेयर वी विल नॉट टच कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 3/2, हम इसको टच यहाँ पे नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इसी को है होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। सो अगर bx के आगे नेगेटिव साइन है, सो हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, हाउ, नाउ टेक x, जो एक्स स्क्वायर है यहाँ से x ले लिए, ये हमारा टर्म पहला और जो हमारा एक्स स्क्वायर होता है इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, a है, ये क्या है, a है। तो जब मैं x लूँगा यहाँ पे तो होल स्क्वायर के बाद x को पे स्क्वायर लगाऊंगा तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। ओके, इसके बाद जो यहाँ पे 7/2 है, ओके, यहाँ पे 7/2 है, इसमें आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1/2 इज मल्टीप्लाई विथ 7/2। ओके, ओनली हमको इसमें ही मल्टीप्लाई करना है 1/2 से 7/2 में। उसके बाद हम होल स्क्वायर लगा देंगे इस पर। ओके ओके, सो 1/2 से मल्टीप्लाई करना है आपको 7/2 में, उसके बाद आपको होल स्क्वायर लगा देना है। आपका जो ये टर्म है अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा 7/4। ओके, सो यहाँ पर हम 7/4 का जो होल स्क्वायर है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो लास्ट वाली टर्म है उससे हम कांस्टेंट टर्म से बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, उसका सेम इट इज ऐसा लिख देंगे। क्या किया, x को मैंने एक्स स्क्वायर को x लिखा माइनस जो 7/2x था, यहाँ से हमको x नहीं लेना है, ओनली हमको 7/2 लेना है, और इसमें हमको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/4 हो जाएगा, और इसका हम होल स्क्वायर बना देंगे। और जितना ये हमारा b है, ओके, दिस टर्म क्या बनेगा, हमारा b बनेगा। ये जो b टर्म है, ओके, उसके बाद जितना भी ये वैल्यू है जिसको हम b बना रहे हैं वही वैल्यू आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देनी है होल स्क्वायर।
7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। ओके, आप अगर यहाँ पे एक स्टेप और लिखना चाहें, ओके, तो वो स्टेप आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा स्टेप है। सी x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन। x², जब मुझे इसको होल स्क्वायर बनाना है a माइनस बी का, सो ये जो टर्म होगा ये वाला होल स्क्वायर में क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² माइनस b² प्लस 2ab, सॉरी a² प्लस b² प्लस b² माइनस 2ab होता है। ओके, ओनली 2ab जो होता है वो नेगेटिव का होता है, माइनस 2ab। सो इसमें x है, तो यही वैल्यू मेरा क्या बनेगा, 2ab बनेगा, नेगेटिव है। इसको जब मैं 2ab बनाऊंगा तो मल्टीप्लाई बाई 2, 7/2x। जब मैंने 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, लेकिन इसमें हम कुछ चेंज तो कर नहीं सकते, वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने से हम डिवाइड कर देंगे, प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो इसको मैं लिख सकता हूँ x² माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 7/4x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 हो गया। ओके, ये मेरे जो वैल्यू है, जो x बाद में आ रहा है, ये मेरा क्या हो गया, b हो गया, और 7/4 है ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे, a हो गया। 2ab। ओके, लेकिन यहाँ पे x आगे है, सो x को आप a मान लो और इसको आप b मान लो। ओके, वैसे इससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, आप किसी को भी a या b मान सकते हैं, ओनली जो 2ab आपका नेगेटिव आएगा। सो a और ये मेरा हो गया क्या, b। तो मेरे पास 2ab तो आ गया। ओके, लेकिन मेरे पास अभी b नहीं है। सो जब मेरा ये b है, मैंने ये माना है, तो ये b होगा। जब मैं इसको ओपन करूँगा, ओके, तो इसका मैं बनाऊँगा, जब मेरा ये b है, ये वाला टर्म, तो मैं इसको क्या बनाऊँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ उसको x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ओके, सो x माइनस 7/4 का मैंने होल स्क्वायर बना दिया। कहाँ से पता चला, जो मेरी वैल्यू थी, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था, ये जो स्टेप है, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें नहीं भी लिख सकते हैं। ये मेरा 7/4, ये मेरा b था। ओके, लेकिन अब मैंने जब इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, तो ये टर्म जो होगा x² प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 7/4 मल्टीप्लाई बाई x, ये टर्म आएगी। इसका मीन्स इक्वेशन में जो 7/4 का प्लस में होल स्क्वायर आ रहा है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, और इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इक्वेशन तो सेम ही रहनी चाहिए ना। तब मैं क्या करता हूँ, जब 7/4 का होल स्क्वायर पॉजिटिव में आता है, क्योंकि a² प्लस b² पॉजिटिव होता है। ओके, a² प्लस b² होता है, माइनस 2ab होता है। तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर जो पॉजिटिव होते हैं, माइनस 2ab नेगेटिव होता है। तो जब मैं 7/4 प्लस का होल स्क्वायर यहाँ पे होगा, और प्लस में क्या होगा, यहाँ पे x² होगा, तो ये टर्म तो एक्स्ट्रा है, इसीलिए मैं 7/4 को यहाँ से क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ उसके होल स्क्वायर के साथ में। ओके, आपको शायद ये स्टेप समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट कर दिया। वो स्टेप आप करना चाहें तो वो स्टेप भी कर सकते हैं। और ये सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं कि 7/4 का जब मैं इसको ओपन करूँगा प्लस का होल स्क्वायर आएगा, लेकिन इक्वेशन फिर ये नहीं रहेगी। तो इक्वेशन को सेम करने के लिए हमेशा जो भी वैल्यू b होती है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं होल स्क्वायर के साथ में। ओके, नाउ ओपन इट, दिस से 7 7 जा 49 एंड 4 4 जा 16 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ अभी इसको हम जो होल स्क्वायर इसको ऐसा का ऐसा रहने देंगे, और इस जो वैल्यू हमारे पास इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 49/16 प्लस 3/2, नाउ टेक एलसीएम, सो एलसीएम इज 16 16 1 जा 16 एंड 1 मल्टीप्लाई 49 इज इक्वल्स टू 49 सेल्फ, प्लस 2 8 जा 16 एंड 16 3 जा 24 इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ अभी भी हम इसको सेम ऐसा कैसे लिख देंगे,
x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, सो माइनस 49 प्लस 24, सो रिमेनिंग इज 25/16 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे माइनस ले लिया आगे हमने, तो इस माइनस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 25/16 इज इक्वल्स टू 0। Now take 25/16 from LHS to RHS. So here it has negative sign. So in the RHS it will come with positive sign. So we will write x minus 7/4 का whole square is equals to 25/16. Okay. Now remove square from x minus 7/4, so it will come only x minus 7/4। स्क्वायर हटा दिया। जब मैंने स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट में हो जाएगा ये 25/16। ओके, अब यहाँ पर जो स्टेप है, अब यहाँ समझ लेते हैं हम कि रियल और इमेजिनरी रूट्स हमको कैसे पता चलते हैं। ओके, सो जब मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करके इस वाली वैल्यू को RHS में भेजूंगा और जो होल स्क्वायर के सामने वैल्यू होगी x माइनस 7/4 या कोई भी होल स्क्वायर है, आइदर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो भी a और b की वैल्यूज हैं, और इक्वल में वो जो वैल्यू है होल स्क्वायर के साथ में इक्वल में वैल्यू RHS में, अगर वो पॉजिटिव है, यहाँ पे कैसी है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। कैसे होंगे, रियल होंगे, और हम कैलकुलेट करेंगे। अगर ये जो वैल्यू हमारे पास आई है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर के साथ में, अगर ये वैल्यू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेगेटिव आती है, कैसी आती है, नेगेटिव। ओके, सो हम कहेंगे इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। और वी कैन से दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट हैविंग रियल रूट्स। ओके, नाउ x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 25 को 5 मल्टीप्लाई 5 और 16 को 4 मल्टीप्लाई 4। ओके, अब रूट के अंदर पेयर बन चुके हैं, जब पेयर बन जाते हैं तो एक वैल्यू क्या होती है, बाहर आ जाती है, तो मैं लिख दूंगा 7x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। अब यहाँ पर मैंने प्लस माइनस वैल्यू क्यों ली है, ये भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सी, अगर मैं 5 मल्टीप्लाई 5 करता हूँ तो भी 25 आता है, और माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 करता हूँ तो भी 25 आता है। माइनस इज कैंसल्ड बाई माइनस। ओके, तो दोनों वैल्यू कैसी आ रही हैं, सेम सेम। अगर मैं 4 मल्टीप्लाई 4 करूँ तो भी 16 आता है, माइनस 4 मल्टीप्लाई -4 करूँ तो भी 16 आता है। ओके, तो दैट्स वाई वी टेक प्लस माइनस 5/4। ओके, इसलिए हम यहाँ पे कैसा ले रहे हैं, प्लस माइनस 5/4 ले रहे हैं, क्योंकि वैल्यू जो आएगी 5/4 या प्लस माइनस करें तो सेम ही वैल्यू आती है। ओके, सो वन टाइम वी टेक पॉजिटिव, वन टाइम वी टेक नेगेटिव। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एक बार मैं 5/4 को पॉजिटिव लूँगा और एक बार 5/4 को नेगेटिव लूँगा। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टेप याद रखना है, रूट से बाहर निकालेंगे तो आप यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे हमेशा। ओके, और ये वैल्यू अगर आपकी कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, होल स्क्वायर के साथ में इक्वल के साइन के साथ, सो आप तुरंत लिख देंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल रूट्स नहीं है। कैसे रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। गॉट इट। नाउ x माइनस 7/4 इक्वल्स टू 5/4। ओके, सो मैंने 5/4 कैसा ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। x इक्वल्स टू 5/4 प्लस 7/4। ये वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ है, 7/4 इधर आके पॉजिटिव के साथ हो जाएगी। सो x इक्वल्स टू 4 इज द LCM एंड 5 प्लस 7, 4 बन जा 4, 1 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 5 एंड 4 बन जा 4 अगेन एंड 1 मल्टीप्लाई 7 इज ऑल्सो 7, so 12/4 the value is 3. So now we got one root that is x equals to 3. Now we take negative 5/4, so x minus 7/4 is equals to minus 5/4. एक बार हमने पॉजिटिव ले लिया, अभी हम नेगेटिव ले रहे हैं,
सो x इज इक्वल्स टू -5/4, ये अगेन प्लस में जाएगा 7/4. ओके, नाउ एज वी कैन सी 4 इज एलसीएम अगेन एंड -5 + 7 कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? x इज इक्वल टू 5 माइनस के हैं प्लस के 7 है, सो -5 + 7 + 2 इज रिमेनिंग, सो 2/4 इज रिमेनिंग. 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4. So now we got second root of x, that is equals to x equals to 1/2. Okay, so now we can write, so the roots of given quadratic equation are 3 and 1/2. ओके, सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम इस तरह से रूट्स फाइंड आउट करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. ओके, सो यहाँ पर वैल्यू कैसी थी? जो बी एक्स था वो नेगेटिव था, इसलिए हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म किया था. अगर बी एक्स हमारा पॉजिटिव है, ओके, सो हम यहाँ पे x प्लस करेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू होगी, ये वाली. लेकिन हमको सबसे पहले क्या करना है, जो x उसका कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. ओके, सो हम फिर a + b का होल स्क्वायर फॉर्म करेंगे और जो भी मेरे पास यहाँ b होगा उसे हम हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, चाहे हम a + b का होल स्क्वायर बना रहे हैं या फिर हम a - b का होल स्क्वायर बना रहे हैं. ओके, समझ में आ गया होगा इतना कि जब यहाँ बी एक्स नेगेटिव है सो हमको क्या बनाना है? a - b का स्क्वायर बनाना है, और बी एक्स अगर मेरा पॉजिटिव है सो a + b का होल स्क्वायर हमको फॉर्म करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा ही है. ओके, और हमको हमेशा जो b होगा वो यहाँ पर हमको नेगेटिव करके होल स्क्वायर को करना है. ओके, घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है. ओके, और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा हम b में, और जो x होगा उसे हम यहाँ से छोड़ देते हैं क्योंकि हमने आपको बताया था जो 2a भी करते हैं तो अपने आप यहाँ पे x हाथ में आ जाता है. ओके, और हम 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया है, तो आप एक बार दोबारा से ठीक से क्वेश्चन देखिएगा. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. फोर्थ पार्ट पे आते हैं. सो फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 2x² + x + 4 इज इक्वल टू 0. So first what do we do? First we check what is the coefficient of x². So यहाँ पे कोफिशिएंट का x² का 2 है, हमको कितना करना है? 1 करना है. So again we will write on dividing both sides of the equation by 2 we obtain, डिवाइड किया. सो डिवाइड कर लेते हैं. सो क्या यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं. ये क्या हो जाएगा? ओनली x² हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/2x हो जाएगा और यहाँ पे 4/2 हो जाएगा. 2 से डिवाइड करूँगा यहाँ पे 0/2 हो जाएगा. 0/2 मीन्स 0 रहेगा. सो x² माइनस सॉरी नॉट माइनस, दिस इज प्लस 1/2x + 2 इज इक्वल टू 2, नॉट 2 0. 0/2 है तो ये कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा. यहाँ पे 2 कैसे आया? 2 जा 4, डिवाइड कर दें. ओके, सो अगेन वी विल मेक होल स्क्वायर ऑफ दिस पार्ट ओनली. ओके, सो ये मैंने x ले लिया. यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे क्या है? प्लस. मैंने कहा जब प्लस होगा तो हम यहाँ प्लस ही लेंगे, और यहाँ पे 1/2 है. सो 1/2 मैंने कहा था जो भी हमारे पास bx होता है उसमें से हम b को लेते हैं और b को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. जो भी वैल्यू आती है उसको हम यहाँ पर b के फॉर्म में लिख देते हैं. तो ये कितना हो जाएगा? 1/4.
यहाँ मैं कितना लिख दूंगा 1/4। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ओके, 1/2 था तो उसमें 1/2 से हमेशा को मल्टीप्लाई करना ही करना है। माइनस मैंने कहा था जो भी आप b मानेंगे यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर बनाए तो b क्या है 1/4, उसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसके स्क्वायर के साथ में। तो 1/4 का होल स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, +2 = 0, और ये वैल्यू को हम टच नहीं करते हैं। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 4 × 4 इज 16 प्लस 2/1 = 0। ओके, डिनोमिनेटर मैंने 1 मान लिया, इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता, क्या मान लेते हैं यहाँ पे 1 होता है। ओके, सो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, now take again LCM, so what the LCM of 16 of 1, that is 16, 16 1 जा 16 and 1 × 1 is 1 plus 1 16 जा 16, 16 टाइम्स गया, 16 × 2 that is 32, 16 2 जा 32। ओके, अगेन x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस का 1 है और प्लस का 32 है, तो क्या रिमेनिंग बचेगा 31/16 इज रिमेनिंग। कितना बचा 31/16 इज रिमेनिंग इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 0 था और यहाँ पे इक्वल्स टू कितना है 0। ओके, अब क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है ये मुझको LHS से RHS में लेके आना है क्योंकि इसको मुझे जो होल स्क्वायर मैंने बनाया है उसके इक्वल रखना है। तो होल स्क्वायर मेरा यहाँ पे क्या है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 31/16। So in the previous question, as I told you, if this term has positive sign, जो ये वाली टर्म है इसका साइन कैसा है पॉजिटिव है, मीन्स प्लस की है। ओके, तब तो जो आपके रूट्स होंगे वे कैसे होंगे रियल होंगे। ओके, पॉजिटिव मीन्स रियल रूट्स। और होल स्क्वायर के सामने वाली जो मैंने होल स्क्वायर बनाया है इसके सामने वाली जो वैल्यू वो कैसी है नेगेटिव है, वो आपकी कैसी होंगी इमेजिनरी होंगी। ओके, क्यों सी यहाँ पे हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि अगर मैं इसका होल स्क्वायर हटाऊँ तो ये जो मेरी वैल्यू है वो हो जाएगी -30/16 अंडर द रूट। ओके, -31/16 किस में हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा। और अभी तक हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है अप टू क्लास 10th दैट नेगेटिव साइन इज अंडर द स्क्वायर रूट। कभी भी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो किसके अंदर है स्क्वायर रूट के अंदर है। ओके, तो इस वैल्यू को हम अप टू 10th स्टैंडर्ड कैन नॉट बी सॉल्व। ओके, तो ये कभी भी जो स्क्वायर वाला टर्म है ये नेगेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे नेगेटिव वैल्यू इक्वल होगा ये अंडर द स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकता है। सो हियर वी विल राइट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, therefore there is no real roots of given quadratic equation। ओके, सो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम कंप्लीट द स्क्वायर मेथड में ये पता लगाते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं या फिर इमेजिनरी हैं, और हम जब bx हमारा पॉजिटिव होता है तो किस तरह से होल स्क्वायर बनाते हैं से। ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन में जब bx नेगेटिव होता है तो हम किस तरह से होल स्क्वायर बनाते हैं। सो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज रिमेनिंग।
third part, okay, and second part. Okay, so your ASW is, your homework is question 1 second part and थर्ड पार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है.